stringent. Roads in capital Bengaluru wore a deserted look and movement of people was at a bare minimum. While in Bihar, 15-day lockdown in force from Thursday, roads were completely deserted. This lockdown till 31st July will be done with stringent measures. With Aisha Khanam in Bengaluru and Salman Haider in Patna, News Night Desk, DD India. Well, a highly anticipated ruling by Europe's top court has landed the striking down of a flagship EU-US data flows arrangement, and that's called Privacy Shield. The EU-US Privacy Shield was set up in 2016 to protect the personal data of Europeans when it is transferred across the Atlantic for commercial use. The same court also rejected its predecessor known as Safe Harbor in 2015. The EU Court of Justice on Thursday said in respect of certain surveillance programs, those provisions do not indicate any limitations on the power they confer to implement those programs or the existence of guarantees for potentially targeted non-US persons. 7 Turkish security personnel died when a reconnaissance plane crashed in eastern Van province. The plane crashed on a mountain at an altitude of 2,200 feet. The last contact from the plane was received at 10:32 p.m. That's about 1:02 a.m. Indian Standard Time on Wednesday, and the plane disappeared from the radar 13 minutes later. Accident investigators are working to determine the cause of the crash. British judges on Thursday ruled that Shamima Begum, a London schoolgirl who travelled to Syria to join Islamic State, should be allowed to return to the United Kingdom to challenge the removal of her British citizenship. Begum left the UK to join ISIS when she was 15, but now she wants to return. Her British citizenship was revoked on security grounds. The Court of Appeal judges said that the only way Begum would be able to have a fair and effective appeal of that decision would be if she was permitted to come back to the UK. A sculpture of a Black Lives Matter protester has been removed from the plinth where a statue of a slave trader, Edward Colston, once stood. The sculpture of Jen Reid was erected on Wednesday but removed by Bristol City Council just over 24 hours later. Reid had been photographed standing on the empty plinth after the Colston statue was pulled down during protests. The black raisin statue of Reid, called A Surge of Power, was created by artist Mark Quinn, and it was designed to be a temporary installation to continue the conversation about racism. The Swedish activist Greta Thunberg urged European leaders on Thursday to take emergency action on climate change, saying that people in power had practically given up on the possibility of handing over a decent future to the coming generations. She said that we need to see it all. We need to see it as, above all, an existential crisis. And as long as it's not being treated as a crisis, we can have as many of these climate change negotiations and talks, conferences as possible. It won't change a thing. A claim quoted by an eminent English language newspaper in an article giving the impression that a Delhi police order is biased. However, the facts check have said that the claim is far from the truth. The Delhi police has rebutted the claim as highly misleading, and that the article conveniently ignores the spirit of the order. And with that, we conclude News Night for tonight. Thanks very much for being with us. Namaskar. Gatha Sagar. Gatha Sagar is a celebration of genius. Watch Shyam Benegal and other renowned Indian directors translate the great masters of world literature into the language of celluloid. Chekhov, Tolstoy, O. Henry, Maupassant, Munro, to name but a few. Gatha Sagar.
Hello and good afternoon. You're with DD News and DD India, and we are back with Dr. Speak, the show where we get you all your questions answered, be it any doubt related to COVID-19, any apprehension that you might have, or any other medical issue as well. You've got the numbers flashing at the bottom of your screen. You can call us up, and you can also connect with us on Twitter and Facebook with any and all of your medical questions related or not related to COVID-19, because this is a phase where health is extremely critical. You have to take really good care of yourselves, and we're here to help you with that endeavor as well. I'm Gautam and with me is Jaya. जी हाँ, ये एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है, इसलिए इस वक्त आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार भारत में बढ़ रही है। अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो वो इस वक्त 63% से ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, 63%। अब तक 6,12,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना महामारी से, और यही हमारी भी कोशिश है कि कोरोना के खिलाफ हमारी ये जंग और भी ज़्यादा मजबूत हो। और इसलिए हमारे साथ हमारे बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वो जुड़ चुके हैं। साथ ही डॉक्टर GC खिलानी, फॉर्मर HOD पल्मोनरी मेडिसिन एम्स, और डॉक्टर नीरू अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, उनके साथ भी हम संपर्क करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जल्द हमारे साथ वो भी जुड़ जाएंगे। Yes, let's start off with you, Dr. Gupta. In terms of how the numbers are right now in terms of the COVID-19 pandemic in India, how are you assessing it? Because we have a situation where the recovery rate is going up, but the number of cases that are coming up, the fresh cases that are coming up within 24 hours is also very high. Yeah, Gautam ji, you are right. If we look at the situation, it's a very difficult situation, because some who are getting the impression like Delhi that maybe the worst is over. But if we look at the country, we see new areas cropping up, and our numbers are consistently increasing. They are crossing 30,000 now. We are 1 million. So its number is going up. And another thing to keep in mind is, there are places which used to think that they are doing well, Goa or Bangalore, Karnataka. Now Karnataka is appearing to be in a bad shape for a week. So these kind of things will keep cropping up, and we must keep in mind that it is not only a situation peculiar to India, it is what we are seeing globally. When we entered July in the first week, we thought the worst was in June, and in June, the number of cases the world over were running into 1.5 lakhs or close to that, 1 to 2 lakhs. And now we see in July they have crossed more than 2 lakhs. They are 2,30,000 every day. So it is a global thing that we are seeing that the numbers are going up, and we should still be vigilant and careful and watchful, and never let our guard down any time. So it's a matter of concern, while at the same time we agree that the recovery rate and the numbers are improving, but we don't want the situation to get out of hand once again. डॉक्टर नरेश, देखिए, जिस तरह से अगर हम आंकड़ों की बात करें, हम इतने लाखों के आंकड़ों की बात करते हैं, तो जो लोग इस वक्त इस जंग से लड़ रहे हैं या जो कोशिश कर रहे हैं कि अब तक कोरोना से बचे रहें, उनके मन में जो डर है वो बहुत स्वाभाविक हो जाता है। डर के रहना, सामान को ध्यान से रखना, आप घर से बाहर नहीं जा सकते इतने दिनों से। अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, कई लोगों ने अपने घरों से सीनियर सिटीजन्स को निकलने नहीं दे रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, अगर हम बात करें तो मेंटली उनके ऊपर एक टोल ले लेता है। किस तरह से ये आंकड़ों से हमें डरना नहीं है, और जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही है कि हमें कोरोना के साथ जीना है, जो तमाम चीज़ें हैं, जो सुरक्षा मानक हैं, उनको अपनी आदत में शुमार करना, लेकिन कितना मुश्किल है इसको सही मायने में अपनाना? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। आप बुजुर्गों का देखिए और बच्चों का देखिए। अगर हम ये मान लें कि वो मार्च से लेके घर के अंदर ही रहेंगे,
ये एक ऐसा तबका होता है जिसकी की रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर कोई बीमारी हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बुजुर्ग हो। और उनका स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो उन्हें करनी पड़ती हैं। तो उनके मन में स्वाभाविक ये बिल्कुल नेचुरल है कि ये मन में आएगा कि हम 4 महीने से क्या कर रहे हैं, ये क्या नंबर की बात कर रहे हैं। ऊपर से ये भी उनको दर्शाया जाता है कि जो नंबर हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, कंटेनमेंट जोन दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया में भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो मानसिक प्रभाव है वो शायद इस बीमारी से भी ज्यादा है, वो आगे निकल गया है। और मानसिक प्रभाव की वजह से उनकी सिर्फ रोजमर्रा की दिनचर्या नहीं डिस्टर्ब हो गई है, जो कि शुरू में भी डिस्टर्ब हुई थी, मार्च अप्रैल मई तक बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन लोग कंट्रोल करते थे क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुदरत ने एक ऐसे हार्मोन्स दिए हैं जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, और जो मार्च अप्रैल में आए और उनकी वजह से हम कुछ भी झेल सकते हैं, इंसान की ये शक्ति है। लेकिन अगर वो ज्यादा अरसे तक रहें तो वो झेलने के बजाय वो हार्म करने लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बुजुर्गों के लिए या बच्चों के लिए भी देखा जाए, ये एक मानसिक विषय बन गया है कि अब हम किस युग में आ गए हैं, किस समय में आ गए हैं, किस समाज में आ गए हैं, आगे क्या होगा। ये जो आगे क्या होगा और अनसर्टेनिटी वाली बात है, उसकी वजह से फियर और एंजाइटी भी आती है और स्ट्रेस आता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज है कि ये उनके मन में आ रहा है, और ये भी मैं कहूंगा कि और बच्चों के मन में नहीं, ये बड़ों के मन में भी आ रहा है। और ऐसी हालात में 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, या तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं इतने बड़े हो गए हैं कि सरकार ने भी वेबसाइट पे और आपके मीडिया के द्वारा काफी इसको एड्रेस करने की कोशिश करी है। लेकिन कुछ लोग उसको इस हालात में लेने के बजाय उस पर ले जाते हैं और ये कहते हैं इसको छोड़ दीजिए, बस ये कुछ नहीं है, अब हमें जीना है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें उनके गार्ड डाउन हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाती है, क्राउडेड प्लेस पे जाना बढ़ जाता है, और वो कुछ नहीं वॉच करते। दोनों ही हालत जो है डिफिकल्ट हैं। जो लोग सीरियसली लेते हैं उनकी हालत भी मुश्किल हो जाती है, और जो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं उनकी हालत भी मुश्किल हो जाती है। ऐसी हालत में हमको बना के रखना बहुत जरूरी है कि किस हद तक किसको निकलने दिया जाए और किसको नहीं निकलने दिया जाए. Definitely, it is difficult because that's what we're seeing in almost every household, especially where there are elderly and children. Difficult to tell them to take precautions all the time, not go out. That is a challenge, and one has to deal with it. And it's up to the individual, really, isn't it, Jaya? बिल्कुल. और घर में बच्चों को बांध के रखना, आप बाहर नहीं उनको ले जा सकते, पार्क में नहीं खेलने दे सकते या कम. अब पार्क खुल गए हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन उस सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से आप मुंह पे हाथ ना लगाएं अगर आप खेल रहे हैं, या जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो बाहर जाना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं, मॉल जाना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि उनको समझाना कि आप जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, आपको 2 गज की दूरी रखनी होगी, मास्क ज़रूर पहनना होगा और कोशिश करना हो कि हाथ सैनिटाइज करते रहे, खरीदें ज़रूर. Perhaps need to carry those small bottles that they can refill as well with the other sanitizers as well. But that makes a lot of sense. We have also got Dr. Neelu Agarwal with us. She is a senior consultant nephrology. Welcome to Dr. Speak, Dr. Agarwal. In terms of the kind of patients that you've had in the past and now in this COVID phase, have you been coming across patients with complications related to COVID as well in otherwise issues of nephrology? Dr. Agarwal, can you hear me? It seems Dr. Agarwal, we cannot get through to her at the moment, but clearly, I mean, we've seen how this disease has been infecting different parts of the body, different faculties, different senses as well, and it's difficult to figure out which all organs can really impact as the disease progresses and takes further hold. बिल्कुल. इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जीसी खिलानी, फॉर्मर HOD पल्मोनरी मेडिसिन एम्स, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. डॉक्टर खिलानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में. सर, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, इस वक्त
उसी से आगे हम सवाल यहाँ पर लेंगे कि किस तरह से तमाम चीज़ें इस वक्त आपके पास भी पेशेंट्स आ रहे हैं, आपको किस तरह से प्रतिक्रिया मिल रही हैं। बीच में खबरें आ रही थी कि कोरोना डर को लेकर जो और बाकी एलिमेंट्स वाले पेशेंट्स हैं वो भी डर रहे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं आते, उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है उनकी परेशानी में। आपको किस तरह से प्रतिक्रियाएं इस वक्त मिल रही हैं कोरोना से खिलाफ जो जंग में हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि धीरे धीरे जो वो है ना संकट जैसे ना छट रहा हो, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि दिल्ली की बात करूं मैं, क्योंकि मैं दिल्ली में ही काम करता हूं, तो कोरोना की पेशेंट्स की संख्या इन पेशेंट एंड आईसीयू में धीरे धीरे कम हो रही है और लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं है जो 5 महीने पहले जिस तरह से हमारे पास ओपीडी में आते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान एक और चीज पे भी आकर्षित करना चाहता हूँ जो जिस पे चर्चा होनी चाहिए, वो है कि जो पेशेंट कोरोना से ठीक हो गए, सपोजिटली नेगेटिव हो गए या उनको 14 दिन बीत गए, उनको बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। सिर्फ ब्रेथलेसनेस ही नहीं, उनकी नींद की प्रक्रिया, उनको शरीर में दर्द, थकावट, शाम को बिल्कुल निढाल हो जाना और तरह तरह के सिम्टम्स उनको आ रहे हैं। और वो बहुत लोग वापस आ रहे हैं अपने सिम्टम्स को लेके हमारे पास। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? लेकिन जहां तक कोरोना का प्रश्न है, दिल्ली में कम हो रहा है लेकिन देश के और भागों में बढ़ रहा है, तो इसलिए ये प्रक्रिया कहाँ जाके समाप्त होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे को लगता है कि भारत देश और भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो वेल प्रिपेयर्ड है। जो हमारी मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ केयर, द लेवल ऑफ केयर, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज हैज इम्प्रूव्ड और हम उनको एक ऑप्टिमम केयर, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त आप अपने सवाल हमसे हमारे डीडी न्यूज़ के फेसबुक लाइव चैनल पर भी पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में एक सवाल यहाँ पर आ रहा है। ये सवाल यहाँ पर मोहन पूछना चाहते हैं राजधानी दिल्ली से। वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोरोना हुआ था और वो पॉजिटिव थे, उसके बाद वो ठीक हुए और उनको ठीक हुए अभी 1 महीने का वक्त हो चुका है। वो ये जानना चाहते हैं क्या उन्हें दोबारा हो सकता है कोरोना, या उन्हें अब बेफिक्र होने की ज़रूरत है, या वो अभी भी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें दोबारा हो सकता है कोरोना? डॉक्टर खिलानी हमारे साथ हैं। Dr. Khilani, if you can hear us, we just put out a question for you. Yes, पुराना एक्सपीरियंस की बात करें, जिसको एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता था तो दूसरी बार नहीं होता था। कई सारी वायरल बीमारियां हैं जो एक बार हो जाती हैं तो आप सोचते हो कि जिंदगी भर के लिए अब ये बीमारी होने का चांस नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के बारे में हम ये निश्चित नहीं है, क्योंकि जो इसका समय काल है अभी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पुरानी बीमारी है। कुछ ये सोचा जाता है कि ये एंटीबॉडीज, जो इम्यूनिटी होती है शरीर में, वो 2 तरह से होती है। एक सेल मीडिएटेड होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी थी। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से, वो कितने दिन तक रहती हैं शरीर में इसका हमें तय नहीं है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आई कि 90 दिन के बाद शायद वो कम हो जाती हैं। तो इन महानुभाव के लिए ये समझना जरूरी है कि बिल्कुल आजाद ना हो जाए। ये नहीं सोचा कि आपको एक कवच मिल गया है कि आपको कोरोना बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा वैज्ञानिक माइंड ये कहता है कि चांसेस कि इनके कोरोना होने के बहुत कम है, या शायद नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि ये वो ही एहतियात बरते एज इफ इनको कोरोना कभी नहीं हुआ। यही इनके लिए सलाह। तो आपको कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोरोना को एक बार हराया है तो यकीनन आप एक कोरोना वॉरियर हैं और आप आगे भी इसी तरह से कोरोना को हराएंगे। लेकिन आपको सावधानी बरतते रहना है और इसी तरह से जिस तरह से पहले आपने कोरोना को हराया, आगे भी अपनी इस लड़ाई को जारी रखना है। Okay, we're told that we're joined by Dr. Neeru Agarwal as well. She's a nephrologist. Dr. Agarwal, welcome to the show. Just wanted to ask you, in terms of COVID-19, this pandemic period, has the profile of your patients, have they had any other difficulties apart from their usual difficulties due to being afflicted by COVID-19? Is there any sort of a nephrological manifestation of this disease as well?
हेलो, नमस्कार। Namaskar. Am I audible? Yes, you are. Go ahead. So the question was nephrological manifestations of COVID disease, Mhm. right? अच्छा, इसमें दो तरह से मैनिफेस्टेशन है। कोविड डिजीज की वजह से एक्यूट किडनी प्रॉब्लम हो रही है कुछ पेशेंट्स को, जिसमें एक्यूट रीनल फेलियर है, उनका यूरिन में प्रोटीन जा सकता है, उनका यूरिन में ब्लड जा सकता है, और कभी-कभी यूरिन फॉर्मेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, और जिसमें हम सीआरआरटी पेशेंट्स की कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी डायलिसिस पर हैं, उनमें भी कोरोना हो रहा है, और ऐसे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। डायलिसिस उनकी भी होती है, लेकिन उनके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो नॉर्मल जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा सीवियर हैं, और उनमें थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड्स की, साइटोकाइन स्टॉर्म की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, और मोर्टेलिटी रेट भी इन पेशेंट्स में और ज़्यादा हाई है, एज हाई एज 40%। Okay. जी डॉक्टर अग्रवाल, एक ही सवाल यहाँ पर आया है। तेजिंदर फरीदकोट से पूछना चाहते हैं कि उनकी वाइफ को हल्का बुखार था और गले में खराश थी और सर दर्द भी था, फटीक था, तो उन्होंने 1-2 दिन रुकने के बाद अपना कोविड टेस्ट कराया जो कि नेगेटिव आया, लेकिन अब 4-5 दिन के बाद भी उनको सिम्टम्स बने हुए हैं और उनका अभी भी थ्रोट में इन्फेक्शन है, गला ख़राब है और थोड़ा फटीग है, बुखार अब चला गया है, तो क्या दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत है या मन में अभी भी उनके ये डर है? जी, ऐसा है कि जो फर्स्ट 5 डेज में ज़रूरी नहीं कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आए। तो अगर आपको हाई रिस्क ऑफ सस्पिशन है, अगर आपको लग रहा है हाई सस्पिशन है, तो उस केस में ये अप टू 14 डेज ये मैनिफेस्ट कर सकता है और पॉजिटिव। तो ऐसे में आफ्टर 5 डेज इन्हें कोविड का टेस्ट रिपीट कराना चाहिए, जो कि 14 दिन पे भी पॉजिटिव हो सकता है। कभी-कभी इनिशियली नेगेटिव होता है, उसके बाद भी कुछ केसेस में पॉजिटिव देखा गया है। तो इसमें बेस्ट होगा कि आप अपने वहाँ पे फिजिशियन को, पल्मोनोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें, और क्योंकि हाई रिस्क है, हाई सस्पिशन रेट है, तो आप इसका टेस्ट मेरे हिसाब से कराना चाहिए। जी डॉक्टर अग्रवाल, एक और हमें सवाल आ रहा है। वी आर गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम इरफान खान हु इज कंसर्न्ड अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट अ न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम द कोरोना वायरस। In general, usually, I'm saying the word usually, it doesn't spread to the baby. But 1 or 2 cases have been seen in Delhi itself where the transmission to baby has happened. तो इसमें न्यूबॉर्न के लिए जहाँ तक है, एज सच इन जनरल बच्चों में इसका इंसिडेंस कम है, लेकिन जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, यही सबसे ज़्यादा इसमें प्रिवेंशन वाले जो उपाय हैं, यही हमें करने हैं। जैसे आप बाहर से आ रहे हैं तो बेबी को डायरेक्टली टच नहीं करिए, आप पहले सोप से वो अपने हाथ साफ करें या सैनिटाइजर से करें, उसके बाद बेबी को टच करें, उसको फेस पे बार बार किस नहीं करें, बार बार उसके फेस को, जो चीज़ आप अपने लिए कि आपको अपने फेस पे टच नहीं करना है, आपको बार बार अपना नोज पे हाथ नहीं ले जाना है, उसी तरह बेबी के फेस पे बार बार टच ना करें। दीज आर द बेसिक थिंग्स। प्लस जो भी चीज़ है वो क्लीन होनी चाहिए, उसको रीयूज ना करें। बेबी के लिए जो भी चीज़ यूज करें वो फ्रेश हो, वॉश्ड हो, क्लीन हो। जी, और बेबी को मास्क तो लगा नहीं सकते हैं? जी, बिल्कुल नहीं लगा सकते, इसलिए आपको मास्क लगाना ज़रूरी है कि जो भी बच्चे के पास आए वो लोग मास्क का यूज़ करें। बिल्कुल, तो आप उससे दूरी बनाए रखें और एहतियात बरतें, उसको ज़्यादा छुएं ना अगर आप बाहर से आए हैं। और राजू दामोदरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर। जी, अपना सवाल पूछिए राजू। हाँ मैडम, मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे लोग बहुत पैनिक है, तो उसमें ये लोग, कुछ लोग बोलते हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, कोई बोलता है होम्योपैथी ट्रीटमेंट लो, कोई बोलता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, तो करना क्या है एक्चुअली, किस जगह पे जाना है एक्चुअली? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं वो आज होम्योपैथी या आयुर्वेद के बारे में बोलेंगे, बट हम डॉक्टर खिलानी से पूछ लेते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। डॉक्टर खिलानी, व्हाट वुड यू लाइक टू से? नहीं, ऐसे है कि हम हर पद्धति का आदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथी करते हैं तो हमें होम्योपैथी या आयुर्वेद के लिए नहीं है, लेकिन ये हमें समझना है कि ये कोरोना की बीमारी का आज तक भी हमारे पास न तो इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग है, जिसको लेबल दवाई कहते हैं, कि जिसको हम कहें कि भाई ये दवाई इफेक्टिव है, कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल दे दिया, टीबी की बीमारी है तो एंटी ट्यूबरकुलर दे दिया तो वो मरीज ठीक हो जाएगा। इस तरह से कोरोना के लिए हमारी पैथी में, दैट इज एलोपैथी में, कोई श्योर शॉर्ट इफेक्टिव दवाई हमारे पास अभी भी नहीं है, वैक्सीनेशन भी नहीं है, इसीलिए ये सारी बहस है।
इसीलिए सारी बहस है कि जो प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन है वो ही इलाज है। हमारी पद्धति में ये है कि डायग्नोसिस, जो कि जिसकी भी सेंसिटिविटी अभी सिर्फ 70% ही है, अगर नेगेटिव आता है तो भी ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि अगर कोरोना डायग्नोज हुआ है तो मौत की दर कैसे कम करनी है, कॉम्प्लिकेशन की दर कैसे करनी है, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करने हैं, किस तरह से ऑक्सीजन देनी है, प्रोन पोजीशन करनी है, वो हमारी पद्धति में है। आयुर्वेद की दवाइयां बहुत सारी प्रचलित हुई हैं, तरह तरह के काढ़े आए हैं, उसके बारे में मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। मेरी बहुत उस बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन आपका अगर उसमें विश्वास है तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उस कॉन्फिडेंस में रह के जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जो हाइजीन, उसको आप नजरअंदाज ना करें, वो जरूर करें। बिल्कुल, तो अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप तमाम उपाय कर सकते हैं, तमाम जो चीज़ें बताई जा रही हैं, मसाले हैं, काढ़े हैं, वो ज़रूर अपना सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर शिखा महाजन पूछना चाहती हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन हु हैज़ रिकवर्ड रिसेंटली कैन स्टिल बी द कैरियर ऑफ द वायरस एंड कैन स्प्रेड इन्फेक्शन to others while being immune themselves. डॉक्टर नरेश, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए, ये सवाल आप लेंगे कि जो शख्स हो चुका है अभी हाल ही में कोविड पॉजिटिव से होकर नेगेटिव हो उठा है, लेकिन क्या वो कैरियर हो सकता है? क्या वो अभी भी इन्फेक्शन फैला सकता है? देखिए, ऐसा है कि अगर साइंस के हिसाब से आप देखेंगे कोविड में, तो अगर कोई रिकवर कर गया है उसकी पॉसिबिलिटी फैलाने की हो सकती है। लेकिन ये कि जब हम रिकवरी के लिए टेस्ट करते हैं, अगर टेस्ट करते हैं तो हम थ्रोट स्वाब करके टेस्ट करके कहते हैं थ्रोट में नहीं है। अब मुश्किल कोविड की ये है कि हम लोगों को ऐसे लगने लगा है कि वो सिर्फ गले में या फेफड़े में ही जाता है। ऐसा नहीं है, पेट में भी जाता है, गुर्दे में भी जाता है। और ये देखने में आया है कि कुछ लोगों में, खासतौर बच्चों में, वो पेट में कुछ ज्यादा रहता है। तो अक्सर वो 2 या 3 हफ्ते आप अपर साइड लेके चलिए, उसमें वो जो है निकलना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में वो अगले हफ्तों तक भी वो उसको निकाल सकता है, मल मूत्र के द्वारा भी। तो उसमें जो है रिस्क आ जाता है कि जो हमारा ट्यूबेज सिस्टम है उसको भी हम जांच करते रहें और देखते रहें कि कहीं उसमें तो ये नहीं पनपने लगा हैगा। तो जहां तक ये इसके रहने की बात है, इनकी सवाल की बात है, जो लोग बीमार होते हैं उनके अंदर ये वायरस देर तक निकलता है, 2 हफ्ते क्या 2 महीने भी निकल सकता है। जो बीमारी से ठीक हो जाते हैं उसमें ये मुमकिन हो सकता है कि वो वायरस कुछ समय आगे तक निकलता रहे। प्रिकॉशन लेनी चाहिए और इसीलिए कम से कम 2 हफ्ते का गैप दिया जाता है ठीक होने के बाद। अगर उनका कोई उनको सर्टिफिकेट देना है या प्लाज्मा लेना है या कुछ भी करना है, बट ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और इसीलिए ये कहते हैं कि जब आप वॉशरूम भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि वहां से ये फैले नहीं, और वहां भी प्रिकॉशन हाइजीन की लेनी चाहिए। Right, I mean there's no replacement for precaution in any sort of a scenario. One has to social distance, one has to wear a mask, one has to sanitize one's hands. That is a given. The other things that might accompany that will be only add-ons. You cannot avoid any of these essentials really as far as protecting oneself is concerned. Now we have Avnish Parihar who's asking us on Facebook, how long can the virus survive in the air if someone came in contact with a COVID patient? Initial treatment at home would be recommended. What should one be doing essentially, Dr. Dhiru Agarwal, if one has come into contact with a COVID positive patient, one knows that, should one simply home quarantine oneself and wait and see if any symptoms appear? There are 2 aspects to it. One is home quarantine. अगर आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको एक अपने रूम में क्वारंटाइन का मतलब पर्सन बीमार नहीं है, लेकिन वो अपने को आइसोलेट कर रहा है एक तरह से, कि उसको अगर कोई साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं तो वो हम बहुत जल्दी डायग्नोज कर सकें। तो दिस इज होम क्वारंटाइन। इसमें उनको अपना टॉयलेट अलग यूज करना है, या अगर कॉमन टॉयलेट वाली बात है वो नहीं कर सकते हैं तो उसको हर बार सैनिटाइज करना है, जिससे कि दूसरे पर्सन को कांटेक्ट ना हो, क्योंकि आप अभी रिस्क में हो, हमें नहीं पता कि आप डेवलप करोगे या नहीं करोगे।
दूसरी चीज ये है कि अगर एक सिंगल रूम में रह रहे हैं, अगर वो भी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, तो एटलीस्ट 2 बेड्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और ये खास ख्याल रखने की बात है। और अगर कोई सिम्टम्स आते हैं 10 डेज तक, अगर कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं तो मोस्ट लाइकली वो नहीं आएंगे। यूजुअली 5 डेज के बाद सिम्टम्स अपीयर होते हैं। आइडिया इसमें यह है कि जैसे ही आपको फीवर आता है तो हम आपको एट द अर्लीस्ट डिजीज को पिक कर लें एंड प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ले लें। दूसरा है कि जिस पर्सन को फीवर आ रहा है, सिम्टम्स कोई नहीं है, तो वो अपने को आइसोलेट करता है कि इल तो है लेकिन उसको अभी हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट को आइसोलेशन कहते हैं। तो ये 2 डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें फॉलो करनी है। और बेसिक, जैसे डॉक्टर खिलनानी ने भी बताया कि हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड यूज ऑफ मास्क, ऑल दीज आर टू बी फॉलोड फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज बीइंग क्वारंटाइन और हु इज बीइंग आइसोलेटेड। एक यहाँ पर कॉलर ले लेते हैं। जौनपुर से मोहम्मद अनीस अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए मोहम्मद अनीस। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। जी। मैं मोहम्मद अनीस बोल रहा हूँ जौनपुर से। मेरा सवाल सर ये है कि मैं एक शादी के फंक्शन में गया था सर, जहाँ से 20 से 25 लोग थे, और मैंने मास्क बराबर लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा मेरे करीब आ जा रहे थे सर। तो उसके बाद मैं घर आने के बाद मैंने सर अपना हाथ मुंह वगैरह धुला, 15-20 बार हाथ भी धुला, मुंह धुला, तो मुझे कितना रिस्क है सर? Okay, I think the question was that he went for a wedding where there were a lot of 25-30 people. Although he was cautious, there were some others who were not as cautious. So in that scenario, what should he be doing? Dr. Khilani, would you like to take that question? हाँ, नहीं, मैं समझ गया इनका प्रश्न। और इसमें ये है कि सारा मसला ये है कि वेदर देयर वाज उस जहाँ जिस भी कांग्रेगेशन शादी में आप गए थे, अगर वहाँ कोई केस है कोरोना का, तब तो आपको रिस्क है। अगर वहाँ कोई केस नहीं है तो आपको रिस्क कम है। उसकी वजह ये है कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमीटर भी है तो उसका तो आप पता नहीं लगा सकते। इसलिए आपके लिए अच्छा तो ये होता है कि आप ना जाते वहाँ पे, लेकिन आप चले गए तो अब आप सिर्फ ध्यान रख सकते हैं कि आपको जब भी कभी जो सिम्टम जो सबको पता है कि बुखार, खांसी, नाक का बहना, शरीर में दर्द, स्मेल अगर आपकी ऑल्टर हो जाए या टेस्ट ऑल्टर हो जाए, तो आप एकदम आगाह हो जाए और अपने आप को आइसोलेट कर लें और फिर टेस्ट कराएं। अदरवाइज मेरे ख्याल से और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। जी, यहाँ पर एक सवाल हरि कृष्ण पूछना चाहते हैं कि वो पिछले 4 महीने से अपने घर में ही हैं और वो कितने दिन तक इतना रह सकते हैं अपने घर में, क्योंकि वो एक सीनियर सिटीजन है, हार्ट पेशेंट भी हैं, लेकिन क्या इतने दिनों तक सिर्फ घर में बंद रहने से भी उनकी सेहत पर असर हो सकता है? You want me to answer that question? जी डॉक्टर खिलानी। हाँ, तो ये बहुत ही अहम सवाल है और ये एक्चुअली हम सबको अफेक्ट कर रहा है। सीनियर सिटीजन को जिनको डायबिटीज है, बड़ा कहना आसान है कि भाई घर में ही रहो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने। मोबिलिटी कम हो जाती है, एपिटाइट कम हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है। तो ये सब ये कॉमन चीजें हैं और ये बहुत ज्यादा हो रहा है और इसलिए अजीब तरह के सिम्टम्स होने लग जाते हैं। बाउल्स इरिटेबल हो जाते हैं और आदमी को बार बार मोशन आने शुरू हो जाते हैं। ये साइकोसोमेटिक सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अब इस समय अनलॉक तो हो गया है ना। हम कहते हैं कि दिस इज नाउ इट इज टाइमिंग ऑफ सेल्फ लॉकडाउन। अब सेल्फ लॉकडाउन में ऐसे नहीं है कि आप बाहर जाके वॉक नहीं कर सकते। आप मास्क लगा के, मेरे ख्याल से अर्ली मॉर्निंग अगर मास्क लगा के अगर वॉक करने जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, आके अपना हाथ धो लें, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको बाकी सब ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी सामान बाहर से आता है, बिना बात के दुकानों पे मत जाएं, इधर उधर की चीजें खरीदने, सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर जाएं। लेकिन अब फिजिकल एक्टिविटी को चाहे घर में चाहे बाहर, जो लोग जिनके पास ट्रेडमिल चाहे घर में साइकिलिंग है, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें। नहीं तो दूसरी बीमारियां जो इनएक्टिविटी की है वो आपको पकड़ जाएंगी। बोन्स की डिजीज, हार्ट की डिजीज, हाइपरटेंशन, ये सब बढ़ जाएगा। तो अपनी एक्टिविटी को नॉर्मल रखें, चाहे आउटडोर करें चाहे इंडोर करें,
maintaining all social distancing and using a face mask and using hygiene. Okay, we have another caller with us. Devika is calling us from Karnataka. Go ahead, Devika, ask your question. सर नमस्ते सर, मैं देविका बोल रही हूँ मैसूर से। नमस्ते सर मेरे हस्बैंड को प्रोटीन यूरिया की बीमारी है सर, उनको किडनी बायोप्सी करवाया था तो रिजल्ट आया था IgAN